Okay, so good morning everyone. Let us start. Okay. See, today we will discuss the economics of your lining, canal lining. Okay, we will discuss what are the advantages of canal lining, disadvantages also, and we will learn some terminologies. Okay, for which will be needed in calculating the economics of the canal lining. Now, the terms economics. Whenever you learn this term economics, what do you think? जब कोई तुमको ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड कभी कोई चैप्टर सब्जेक्ट अगर पढ़ने को मिलता है तो क्या होता है बेसिकली इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी डू you have learned so many you have already gone through your I think highway economics also in your finance and economics in that chapter also, right? In the previous, I think in the previous semester. So basically here we are dealing with the cost and benefit, right? Cost of something and the benefit that you have obtained from that thing. Okay, so here in this case what we are learning canal lining. So we will discuss or we will determine what is the cost of construction of the lining and what is the benefit. Obviously you will get some benefit from the lining. That means if a channel, suppose this irrigation channel you have designed everything, okay, but it is unlined. Okay, so if the surface of this is not covered with cement concrete, or if it is an unlined canal, obviously there will be some losses. Okay, losses in terms of what? In terms of cumex of water, the water which is flowing through this channel, there will be loss in the discharge or loss in the flow or loss in the head of this water flow. Okay, so that loss we need to convert into we have to calculate that loss in monetary terms. That means in terms of revenue we need to calculate those losses. Okay, and we will compare it with the then we need to calculate the what is the cost of construction of this lining. Okay, and once we have converted a unlined channel into the lined channel, then what will be the benefits? Obviously there will be some reduction in the losses. Okay, so with the reduction there will be some benefit to us. Okay, if more is the loss, less benefit is that channel, right? We are obtaining less benefit from that channel, and if there is more less is the losses in this discharge or whatever value, okay, flow values and everything, obviously revenue collected from that irrigation will be more. So we need to compare this cost with the benefit that we will obtain. Okay, if we have lined the canal, if we have converted the unlined canal into the lined canal, okay, what will be the benefit that we have to understand? Then we will do comparison. If more is the cost compared to the benefit that you have obtained after lining a channel, that construction or that project, will it be economic to you or uneconomic? अगर वहां से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बेनिफिट बहुत कम मिला है, एक है कि अनलाइन कैनल को तुम लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली वहां पे कुछ प्रॉफिट मिलेगा तुमको, राइट? तो वो अगर बेनिफिट जो भी मिला है, इफ दैट बेनिफिट इज लेस, इतना खर्चा हुआ है उसको कंस्ट्रक्ट करने में और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लिया, सब यूज कर रहे हैं अब, ठीक है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइन चैनल। और हम लोग बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बेनिफिट इज लेस कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन तुम्हारा वो जो भी प्रोजेक्ट था, ये जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट, विल इट बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक? वो इकोनॉमिक होगा कि अनइकोनॉमिक हो जाएगा? बोलो, एनीवन? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा है बेनिफिट से, तो वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक रहेगा कि अनइकोनॉमिक? सिंपल, अनइकोनॉमिक। यस, ऑब्वियसली अनइकोनॉमिक, राइट? तो यही चेक करना है। देखो, लाइनिंग करना भी है और हमको देखना भी है कि लाइनिंग करके जितना खर्चा पड़ रहा है वो बेनिफिट से ज्यादा तो नहीं हो रहा है।
दैट वी हैव टू चेक। अगर वैसा हो रहा है तो क्या होगा, तो तुम जितना भी लाइनिंग करके तुमको लग रहा है कि बेनिफिट होगा, नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट इज, तो हम लोग का वो खर्चा बेकार में गया। सो वी हैव टू सी दोस, और वी हैव टू कंपेयर दोस कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो। यही हमको चाहिए इकोनॉमिक्स में, हम लोग यही करते आ रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट निकाले, देन वी आर कंपेयरिंग द कॉस्ट विद द बेनिफिट। अगर कॉस्ट बाय बेनिफिट इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस इट इज एन इकोनॉमिक, राइट। ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से। नाउ कम टू द लाइनिंग। अब आते हैं लाइनिंग में कि क्यों करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो मेनली क्या है, इसका पर्पस है टू मिनिमाइज द सीपेज लॉस। ये तो सबको पता है कि अनलाइन कैनल क्या होता है, इट इज नेचुरल अर्थ, तो वो ऑब्वियसली उसमें पोरोसिटी होगा, राइट, परमिएबल होगा, फिल्ट्रेट करेगा, इनफिल्ट्रेट करेगा, पानी तो जा रहा है, तो पानी तो जो सॉइल, जिस सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर वो लाइन क्या वो कैनल डिजाइन किया हम लोगों ने, दैट विल, वो तो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, सीपेज लॉस हो जा रहा है। सो तो हमको वो सीपेज लॉस हमको रिड्यूस करना है। ओके, वी हैव टू रिड्यूस दैट सीपेज लॉस। तो मेन पर्पस तो वही है तुम लोग का, राइट। दूसरा पर्पस क्या था तुम्हारा, दूसरा पर्पस है टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द बेड एंड द साइड्स। देखो, अगर यहाँ पे लाइन नहीं रहता, ये जो कंक्रीटिंग से हम लोग नहीं देते, और ये एलुवियल वाला सॉइल अगर रहता तो क्या होता, ऑब्वियसली जो फ्लो से आ रहा है वो धक्का देकर यहाँ से हो जा रहा है, एडी करंट एंड एवरीथिंग, क्या हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा फोर्स की वजह से क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी में आ गया तो इरोशन, ये उखाड़ के लेकर जाएगा, राइट। तो इरोशन हो जाएगा जो साइड्स में पार्टिकल्स है नीचे रिवर बेड में, तो उसको भी प्रिवेंट करना है हमको, इसलिए ये लाइनिंग कर दे रहे हैं। ओके, और दूसरा क्या था, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैनल। मेन यही है कि हमको बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट कहाँ से आएगा, देखो ये कैनल वाटर जो है, कैनल में जो पानी जा रहा है, अल्टीमेटली वी आर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम अ रिजर्वर टू द इरिगेशन लैंड, राइट। तो जितना ज्यादा पानी कैरी करके हम ले जाएंगे इरिगेशन लैंड में, उतना ज्यादा इरिगेशन होगा, उतना ज्यादा क्रॉप यील्ड होगा, राइट। यील्ड ऑफ क्रॉप होगा, उतना ज्यादा क्रॉप अगर हम लोग हार्वेस्ट कर पाएंगे तो उतना ज्यादा पैसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो यही हमको चाहिए, पैसा में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना आएगा क्रॉप से, राइट। अब वो क्रॉप्स कैसे हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एरिया फील्ड हम लोग इरिगेट कर पा रहे हैं, और वो कितना एरिया इरिगेट और कमांड एरिया कितना होगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इसके डिस्चार्ज में, कैनल से जो वाटर आ रहा है उसके डिस्चार्ज में, राइट। अब ये डिस्चार्ज कितना ज्यादा होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका सरफेस, मतलब जो भी है कैनल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। इसका जो है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये रिवर बेड का मटेरियल पार्टिकल्स कैसा है, रुगोसिटी कोएफिशिएंट कैसा है, सबके चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो इफ वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन, राइट, मतलब कि जितना फ्लो पानी ये ले जा सकता है, अगर वो बहुत ज्यादा ले सकता है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एरिया में जाके वो इरिगेट कर पाएगा, बहुत ज्यादा एरिया को पानी मिलेगा तो मतलब बहुत सारा क्रॉप्स को यील्ड हो जाएगा, मतलब हम लोग क्रॉप्स को यील्ड कर पाएंगे, राइट। और बहुत ज्यादा क्रॉप यील्ड होगा तो रेवेन्यू पैसा भी ज्यादा होगा। ओके, सो मेन पर्पस इज दिस थ्री थिंग्स। अब आते हैं एडवांटेज में। एडवांटेज तो हम बोले थे लेस सीपेज और पर्कुलेशन। अगर ये लाइन रहता तो ये पर्कुलेशन उतना नहीं होता, राइट, लेकिन ये लाइन नहीं है तो ये पर्कुलेशन हो रहा है, एक ये होता है। दूसरा होता है बिकॉज ऑफ दिस सीपेज, आसपास में जो तुम्हारा लैंड है उसमें जाके क्या हो जा रहा है, वाटर उस एरिया में चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग, मतलब यहाँ का पानी ये वाला एरिया में आ जा रहा है तो मार्सी लैंड हो जाएगा क्रिएट। तो मार्सी लैंड होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे अगेन वाटर लॉगिंग होगा, तो फिर से वही होगा, मतलब वहाँ पे हमारा बोलते हैं अनहाइजीनिक भी हो सकता है, ठीक है। क्रॉप डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू एक्सेस वाटर, राइट। दूसरा क्या है, लेस इवेपोरेशन लॉस, लॉसेस भी कम होता है यहाँ से। ओके, इंक्रीजेस कैपेसिटी, कैपेसिटी तो इंक्रीज होगा ही। ओके, नाउ दूसरा क्या है, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। देखो ये वाला स्मूथ है, स्मूथ सरफेस की वजह से रुगोसिटी कोएफिशिएंट बहुत तुम्हारा कम हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, ये हाई वेलोसिटी में पानी बहना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी की वजह से अब देखो क्या क्या होगा, हाई वेलोसिटी विल लीड टू ग्रेटर डिस्चार्ज, राइट। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या है, Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट। तो तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज भी ज्यादा रहेगा थ्रू स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मतलब तुम क्रॉस सेक्शन कम कर दो फिर भी तुम्हारा वेलोसिटी डिस्चार्ज ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, राइट, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है, इसलिए ये ग्रेटर डिस्चार्ज होगा थ्रू स्मॉल क्रॉस सेक्शन। अब स्मॉल क्रॉस सेक्शन होने से क्या हो जाएगा तुम्हारा,
खर्चा भी कम होगा, कटिंग में भी कम रहेगा। ऑब्वियसली ये तो कटिंग है, अर्थवर्क इन कटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कटिंग करने में भी कम खर्चा रहेगा, क्रॉस सेक्शन ही कम है तो कम माटी हमको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वी हैव टू एक्सकवेट, सो उसकी वजह से खर्चा भी कम हो जाएगा, राइट। एंड हाई वेलोसिटी विल लीड टू फ्लैटर ग्रेडियंट एंड बेड स्लोप, मतलब ज्यादा स्लोपी नहीं होगा, ठीक है। ये खुद फ्लो रिवर या वाटर इटसेल्फ इज फ्लोइंग विद द हाई वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ग्रेडियंट देने का हमको जरूरत नहीं है। ग्रेडियंट मतलब लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप, ओके, उतना देने का जरूरत नहीं है हम लोग को वहां पे। दूसरा क्या है, हाई वेलोसिटी रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन, ज्यादा फ्लो से आ रहा है मतलब क्या है, ज्यादा स्पीड से आ रहा है, जो पार्टिकल्स है इन दैट, हम बोले थे ना एक पार्टिकल्स रहता है सब में, पानी तो क्लियर वाटर नहीं है, पार्टिकल्स तो रहेगा, सिर्फ पार्टिकल्स, तो वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है मतलब तो क्या हो जाएगा वहां पे, ये डिपॉजिट होना भी नहीं, मतलब डिपॉजिट नहीं होगा वहां पे, ओके। सो सिल्टेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्वियसली ये बोले थे क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से अर्थवर्क हम लोग का कम लगेगा, ठीक है। अगेन एज आई सेड, कमांड एरिया, डिस्चार्ज ज्यादा है तो कमांड एरिया बढ़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, मिनिमम मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, ये है, ओके। और है इंक्रीजेस द डिजाइन लाइफ, ऑब्वियसली ये जल्दी ज्यादा दिन तक टिकेगा डिजाइन लाइफ, ओके। बट अच्छा ये डिसएडवांटेज होगा, ओके, यहाँ पे एडवांटेज हमने लिख दिया, दिस इज डिसएडवांटेजेस, और पिछला वाला भी एडवांटेज था, ठीक है। ये दिस इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब खर्चा ज्यादा है, लाइनिंग करने में खर्चा लगेगा ना, फ्री में तो ये वाला जैसे अनलाइन में कुछ है नहीं, लाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सकवेट कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा लेयर बिठा रहे हैं तो खर्चा लगेगा, सो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। अगर ये बाई चांस टूट गया, कहीं पे कुछ हो गया तो उसको रिपेयर करना, मतलब देखो इसको खाली करना पड़ेगा, फिर रिपेयर करना पड़ेगा, तो थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। रिपेयरिंग इस सब में डिफिकल्ट टू रिपेयर द डैमेज लाइनिंग, लाइनिंग बीइंग परमानेंट, डिफिकल्ट टू शिफ्ट द आउटलेट्स इफ नेसेसरी, मतलब कि आउटलेट है तुम्हारा, सपोज आउटलेट का मतलब है कि हम लोग इस वाले एरिया से अब पानी निकाल के लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज डैमेज हो गया और ये तो परमानेंट है, राइट, तो इसको हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तब डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये परमानेंट है, इसको उठाकर टेम्पररी नहीं है कि यहाँ पे बंद करके दूसरा आउटलेट निकालेंगे, तो खर्चा भी लगेगा। सो यहाँ पे तुम्हारा आउटलेट डिफिकल्ट टू शिफ्ट द आउटलेट्स, ओके। दूसरा क्या है, लाइन चैनल सेक्शन इज विदाउट बर्न। विदाउट बर्न का मतलब है, बर्न मतलब है जैसे यहाँ पे एक उठा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारे इसको बोलते हैं बर्न। अगर यहाँ पे ये बर्न नहीं देते, लाइनिंग का तो ऐसा रहता है, फ्लैट रहता है, राइट। तो अगर यहाँ पे बर्न नहीं देंगे तो यहाँ पे अगर तुम्हारा गाड़ी है, एम्बैकमेंट में रोडवे है, तो इट विल बिकम अनसेफ, ठीक है, या पेडिस्ट्रियन जा रहा है तो तब ये अनसेफ है, सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, मतलब बाउंड्री वैसा कुछ सपोर्टिव नहीं है एज अ बर्न, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ओके। अगर यहाँ साइड से तुम्हारा कुछ एम्बैकमेंट में अगर हम लोग रोडवे कंस्ट्रक्ट करेंगे इन केस ऑफ लाइन कैनल, ओके। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, देखो वही खेला आ रहा है, क्या तुम लोग का कॉस्ट निकालो बेनिफिट निकालो, राइट। तो इकोनॉमिक कब बोलेंगे हम, व्हेन द कॉस्ट इज ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल्स टू बेनिफिट, ओके। cost of lining must be equals to or lesser than, obviously lesser than benefits from the channel lining, ठीक है। अब बेनिफिट्स कहाँ पे आ रहा है, देखो बेनिफिट्स आ रहा है तुम्हारा ये सब में, ये जो सीपेज लॉस हो रहा है, हाई कमांड एरिया, मतलब कमांड एरिया ज्यादा इरिगेशन हो रहा है, तो वो रेवेन्यू से आएगा, कितना कलेक्ट हम लोग कर पाते हैं क्रॉप्स को इरिगेट करके, राइट, इरिगेशन से हम लोग को आ रहा है। और एक होता है कि सीपेज लॉस, जितना कम सीपेज लॉस होगा उतना हम लोग का ज्यादा बेनिफिट है। ये लॉस हो सकता है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें कम होगा कंपेयर टू द लाइन, ठीक है। तो व्हाट इज द रिडक्शन, इसमें सपोज पहले 100 क्यूमेक्स अब इसमें 50 क्यूमेक्स हो रहा है, तो कितना परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, 50% हम लोग का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो 50% रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा पानी दे पा रहे हैं, इन केस ऑफ लाइन कैनल हम लोग ज्यादा वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा एरिया होगा, एरिया यील्ड इरिगेशन होगा, उसकी वजह से ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर पाएंगे और पैसा ज्यादा आएगा। सो ऐसे कन्वर्ट कर देना हमको बेनिफिट्स को, राइट। तो जो भी रिडक्शन तुम्हारा रिडक्शन इन लॉसेस विल बी योर बेनिफिट, ये कंसीडर करना है, ओके। तो लेट अस गो टू द टर्मिनोलॉजीज। अब ये टर्मिनोलॉजीज हमको प्रॉब्लम में आएगा, ओके, प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि क्या क्या है। सी कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इन रुपीज पर मीटर क्यूब, प्लीज रिमेंबर द यूनिट ऑल्सो, ओके, यूनिट पर याद रखना है, कॉस्ट पर लाइनिंग इन मीटर क्यूब हो गया ये। दूसरा क्या है, स्मॉल एस कैपिटल एस, ये स्मॉल एस तुम्हारा अनलाइन के लिए, एस है तुम्हारा लाइन के लिए, ठीक है। एस से तुम्हारा क्या, ये सीपेज लॉस, ओके,
Seepage loss is on line and line canal respectively, and in this formula meter cube per meter square of the wetted surface area. Okay, P and P क्या है? वेटेड पेरीमीटर. P है वेटेड पेरीमीटर, स्मॉल p है तुम्हारा अनलाइन के लिए, कैपिटल P लाइन के लिए इन मीटर, वेटेड पेरीमीटर. ओके, P is the total perimeter of the line. देखो एक होता है वेटेड पेरीमीटर, एक होता है टोटल. देखो दिस इज द टोटल पेरीमीटर. यहाँ से हम लोग पेरीमीटर मतलब ये है दिस लेंथ. ओके, क्रॉस सेक्शन का टोटल लेंथ इज द टोटल पेरीमीटर. लेकिन वेटेड कितना है? ये ब्लू लाइन के नीचे जितना है दैट इज द वेटेड पेरीमीटर. मतलब सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस ये दिस इज द वेटेड पेरीमीटर. ओके, सिमिलरली देखो टोटल पेरीमीटर है तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग से ऊपर से लेकर ये, लेकिन अनलाइन के लिए वेटेड पेरीमीटर कहाँ से होगा? ये जस्ट वाटर सरफेस के नीचे जितना भी पेरीमीटर है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे. तो टोटल पेरीमीटर विल बी obviously greater than the more than the weighted perimeter. ये याद रखना है. ओके, तो टोटल पेरीमीटर विल बी obviously greater than your weighted perimeter. And D is what? Number of running days of the channel per year. ईयर में कितना दिन ये चलता है. ओके, ये है तुम्हारा चैनल कितना दिन चल रहा है. आछो तो तुमरा हाँ मैम. नाउ दूसरा और क्या क्या है टर्मिनोलॉजीज. W आएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ वाटर सेव्ड. देखो अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉनिटरी टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं. ओके, सो वैल्यू ऑफ वाटर सेव्ड, जितना लॉस कम होगा उतना ज्यादा पैसा हम लोग बचा पाएंगे, यही है. ठीक है, उसको हम लोग दे दिए कितना, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर या क्यूमेक्स ऑफ वाटर के लिए, एक क्यूमेक्स ऑफ वाटर के लिए कितना रुपीस है. ठीक है, रुपीस पर मीटर क्यूब. ठीक है, अगर एक क्यूमेक्स सपोज यहाँ पे W दिया है, W इज द अमाउंट ऑफ द वाटर से पर मीटर क्यूब ऑफ द वाटर. मतलब 1 मीटर क्यूब अगर तुम वाटर सेव करोगे तो कितना पैसा पाओगे? W rupees you will earn. Okay, you will see. L is the length of the channel in meter. N is the life, तुम्हारा life of the lining, 40 years 30 years कितना होता है. ठीक है, M is the annual savings in operation and maintenance. Obviously देखो मेंटेनेंस रिपेयर कम हो जाता है, राइट. लाइनिंग में क्या है, अनलाइन में अगर थोड़ा भी ज्यादा फ्लो से आ जाएगा तो पूरा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंटेनेंस ये सब हमको उसका जो भी डिजाइन पैरामीटर है, उसका डिजाइन क्रॉस सेक्शन उसको तो मेंटेन करना है, तो उसके लिए खर्चा लगेगा, राइट. अब अनलाइन में क्या हो रहा है, अनलाइन में तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर आ जा रहा है बीच में, राइट. तो वो तो ज्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो स्ट्रेंथ में ज्यादा भी है उसका, तो ज्यादा जल्दी से वो इरोशन भी नहीं होगा. क्या हो जाएगा वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट खर्चा कम हो जाएगा. सो सेविंग्स कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट में सेविंग्स कितना है, वही है. लाइन कैनल में अगर 100 रुपीज है मेंटेनेंस, वहां पे तुम्हारा सपोज कितना है 60 रुपीज आ गया मेंटेनेंस कॉस्ट. योर सेविंग इज हाउ मच? 40. ठीक है, 40 रुपीज इज द सेविंग, दैट इज एन. B is other benefits. ठीक है, B है other benefits in rupees. I rate of interest, ये आएगा, ये हमको चेंज जब करेंगे तब आएगा. और नेट प्रेजेंट वैल्यू में जब लाएंगे सब वैल्यू को तब ये आई का वैल्यू लगेगा. ओके, तो ये फंडा हमको फॉलो करना है. ओके, अब देखो वैल्यू ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द सीपेज फ्रॉम अनलाइन सेक्शन, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है. ठीक है, W क्या था, W था तुम्हारा रुपीस पर मीटर क्यूब. मतलब हमको रुपीस निकालना है, वैल्यू ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना है. ठीक है, तो लॉस्ट बाय सीपेज, लॉस्ट बाय सीपेज, तो सीपेज लॉस तुम्हारा इतना S. अनलाइन कैनल के लिए कितना था, S कितना था अनलाइन कैनल के लिए, सॉरी S मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर का, राइट, पर डे, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. ठीक है, सो S इज व्हाट, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, हम लोग को अब ये क्या कर देना है, ये वाला है तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना लॉस हो रहा है, इतना S मीटर क्यूब लॉस हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द पेरीमीटर एंड दिस इज द लेंथ. सो पेरीमीटर इनटू लेंथ विल गिव यू द एरिया ऑफ सीपेज, कहाँ से ये सीप हो रहा है, राइट, एरिया ऑफ सीपेज. एक ड्रॉ अगर करेंगे तो ऐसा होगा, देखो ऐसा अगर लाइन कैनल है तुम्हारा. ठीक है, अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, ऐसा है सपोज,
तो हमको कहाँ से लॉस होगा? ऑब्वियसली यहाँ से लॉस हो रहा है, राइट, साइड से लॉस हो रहा है और नीचे वाले एरिया से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सीपेज हो रहा है और एक इस तरफ से भी हो रहा है। तो हमको ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, मतलब ये जो भी एरिया है, ये नीचे का रिवर बेड का एरिया, साइड का एरिया, तो टोटल एरिया निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द वेटेड पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर निकालो इनटू एल, सपोज दिस इज द एल, ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ये वाला एल है। सो दिस पैरामीटर इनटू एल विल गिव यू द सरफेस एरिया जहां से सीपेज हो रहा है, ओके। तो देखो ये आ रहा है तुम्हारा सरफेस एरिया जहां से सीपेज होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ठीक, पर डे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे, तो ये टोटल विल बी मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे इंटू डे कर दो तो मीटर क्यूब आएगा ये वाला। अब ये मीटर क्यूब इंटू रुपीस पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो टर्म आएगा रुपीस, ओके। सो दिस इज द लॉस, सॉरी दिस इज द सीपेज लॉस इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, हम लोगों ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। सिमिलरली अनलाइन का ऐसा है, तो लाइन का यहाँ पे कैपिटल P होगा, कैपिटल S होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द सेविंग्स, ये है तुम्हारा ड्यू टू सीपेज कितना अमाउंट लॉस हुआ हम लोगों का, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू सीपेज कितना अमाउंट लॉस हुआ इन केस ऑफ अनलाइन। ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सीपेज लॉस विल बी, ये एस वैल्यू विल बी लेसर, यहाँ पे लाइन कैनल में सीपेज विल बी लेस कंपेयर टू द अनलाइन, तो ये पूरा टर्म ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो दिस माइनस दिस विल गिव यू, पहले इतना लॉस होता था अनलाइन में, अब इतना लॉस हो रहा है लाइन में, तो व्हाट इज द सेविंग, तो दिस इज द सेविंग, ओके, दिस माइनस दिस इज द सेविंग। अब एनुअल बेनिफिट, ये एक काइंड ऑफ बेनिफिट हो रहा है, सेविंग मतलब बेनिफिट हो रहा है, राइट, हमको बेनिफिट मिला, हमको खर्चा कम देना पड़ रहा है, तो सेविंग, इतना सेविंग हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे पॉकेट में इतना रहेगा। और उसके साथ बाकी बेनिफिट्स भी ऐड कर दो, तो बाकी बेनिफिट्स आर बी, और मेंटेनेंस में जो खर्चा था वो उसमें सेविंग्स कितना है वो भी हम लोग ऐड कर दिए, तो टोटल सेविंग्स इज दिस मच, ओके। लेट दिस वैल्यू बी स्मॉल ए, अगर ये पूरा वैल्यू स्मॉल ए होगा, ठीक है। अब इसको हमको नेट प्रेजेंट वर्थ में करना है, मतलब ये थ्रू आउट दिस विल बी फॉर 40 इयर्स, 40 इयर्स में तुम्हारा कितना वो हो रहा है, ठीक है, आफ्टर 40 इयर्स कितना तुम्हारा सेविंग्स होगा, ठीक है। अब उसको हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी कितना हो रहा है वो हमको चाहिए, उसके लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये एक वैल्यू तुमको पता है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हमको ये टर्म्स जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कितना ईयर्स के लिए ये चैनल खुला था, ये हो गया, या डिजाइन लाइफ भी बोल सकते हैं एन। सो मल्टीप्लाई दिस, पहले ये कैलकुलेट कर दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द एनपीडब्ल्यू, ओके। सो दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल बेनिफिट, मतलब ये हमको ये वाला निकल आया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन कैनल इज, ये क्या था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए था, राइट। तो ये है तुम्हारा रुपीस पर मीटर स्क्वायर। एक एरिया ऑफ लाइनिंग बनाने के लिए या एक सरफेस एरिया को लाइन करने के लिए इतना खर्चा है, राइट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लाइन करने के लिए इतना पैसा हमको देना है। तो टोटल मीटर स्क्वायर ऑफ लाइनिंग कितना होगा, लेंथ इनटू टोटल पेरीमीटर, थ्रू आउट द पेरीमीटर ही हमको वो लाइन करना है, राइट, टोटल पेरीमीटर को कंसीडर करना है, नॉट द वेटेड पेरीमीटर। लेकिन सरफेस एरिया का वही है, पेरीमीटर इनटू लेंथ, सरफेस एरिया टोटल पेरीमीटर इनटू लेंथ, this will give you the total area, surface area, this into total cost will give you in rupees। ये है तुम्हारा कॉस्ट, ओके। सो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये वैल्यू मस्ट बी लेस देन एनपीडब्ल्यू, जो पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने निकाला था। सो टोटल लाइनिंग कॉस्ट, इसको टोटल लाइनिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, सो टोटल लाइनिंग कॉस्ट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू एनपीडब्ल्यू, ओके। ये चेक करना है फॉर इकोनॉमिक है कि नहीं, ओके। तो दिस इज द फंडा, नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, ये वाला 15 मार्क्स का बार बार आया है इसलिए हम ये करा दे रहे हैं, ओके। सो प्लीज बी पेशेंट और थोड़ा ध्यान से देखो, इजी है, इतना टफ नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल वो है कैलकुलेशंस, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है। सी क्या है, एंड अनलाइन, एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज आंसर, एनी डाउट टिल नाउ,
डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके देखो इतना दूर तक जो भी हम फॉर्मूलाज दिए हैं यू नीड नॉट टू रिमेम्बर। अब यहाँ से हम लोग ये फंडा है, एक से फंडा कैसा बेसिक्स है, अब आते हैं सिंपल कैलकुलेशंस में, हम लोग करते करते जाएंगे। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन, सी an unlined canal giving a seepage loss and you have to follow the units ध्यान से देखना है। ओके क्या बोला है यूनिट्स में, तो an unlined canal giving the seepage loss of 4 क्यूमेक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये शायद 4 क्यूमेक्स नहीं होगा, ये मीटर क्यूब होगा शायद, 4 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर मीटर। ओके सो एन ऑनलाइन कैनल गिविंग द सीपेज लॉस ऑफ इतना क्यूमेक्स, वो लॉस हो जा रहा है ड्यू टू सीपेज, इतना पानी लॉस हो जा रहा है। ओके पर कितना एरिया, पर कितना वेटेड एरिया, पर मिलियन मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया। ओके मतलब 10⁶ मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया से इतना लॉस होगा। ठीक है हमको वही याद रखना है कि ये 10⁶ मीटर स्क्वायर एरिया से इतना लॉस हो रहा है ड्यू टू सीपेज इन अनलाइन कैनल। ओके नाउ दिस लाइन कैनल इज प्रपोज्ड टू, अनलाइन कैनल इज प्रपोज्ड टू लाइन विथ दिस मच थिक सीमेंट कंक्रीट। अब इसको हम लोग लाइन कर दे रहे हैं इस सीमेंट कंक्रीट से। ओके विच कॉस्ट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक सरफेस एरिया को लाइन करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को लाइन करने के लिए 20 रुपीज लगा है हमको। ओके वर्कआउट द इकोनॉमिक ऑफ लाइनिंग, ये देखना है कि ये इकोनॉमिक है कि नहीं, चेक करो। एंड सो इफ द स्कीम इज जस्टिफाइड और नॉट। ओके यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, क्या है देखो, एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम द क्रॉप्स कितना है, ₹4 लाख पर क्यूमेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा कि एक क्यूमेक्स मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है फील्ड में जा रहा है, फील्ड में जो इरिगेशन होगा उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कितना है, 4 लाख रुपीस है। ठीक है 4 लाख रुपीस है 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्चार्ज होने से। ठीक है ये है एनुअल रेवेन्यू, मतलब इसको कन्वर्ट कर देना, जो वाटर को हम लोग जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस वन। ये है तुम्हारा एरिया, ये है। ओके देखो एक सरफेस एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वो जो ट्रैपेजोइडल शेप जो है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके दिस इज दैट वन। एंड ये जो वेटेड एरिया हम लोग बोल रहे हैं जो मिलियन स्क्वायर जो भी बोल, दैट इज द सरफेस एरिया जहां से सीप हो रहा है, पानी निकल रहा है जहां से, मतलब टू आउटर सरफेस में या सराउंडिंग सरफेस में जो सीप हो रहा है। दिस इज व्हाट वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल, दे दिया स्मॉल p इतना है, वेटेड पेरीमीटर ऑफ लाइनिंग या लाइन चैनल है इतना। ठीक है कैपिटल P दे दिया है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन कैनल इज दिस मच, मतलब जब ऑनलाइन था तो इतना खर्चा हो रहा था, पर मीटर स्क्वायर के लिए मेंटेन करने के लिए इतना रुपीस खर्चा हो रहा है। ओके नाउ सेविंग्स इन एनुअल मेंटेनेंस एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइनिंग, मतलब अगर तुम्हारा 100 रुपीस खर्चा हो रहा है पर 10 मीटर स्क्वायर में मेंटेनेंस करने के लिए ऑनलाइन कैनल में, ठीक है तो सेविंग्स कितना हो रहा है अगर तुम उसको ऑनलाइन को लाइन में कर दोगे, बोला है सेविंग्स हो रहा है 40%, मतलब इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा सेविंग्स ₹40 तुमको मिलेगा पर 10 मीटर स्क्वायर। ओके यही बोला गया है। लाइफ ऑफ लाइनिंग इज 40 years, एन दे दिया, स्मॉल एन दे दिया इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई दे दिया 6%, सीपेज लॉस फॉर लाइन कैनल ये वाला दिया नहीं है। ओके वी हैव एज्यूम दिस डाटा, यहाँ पे सीपेज लॉस फॉर लाइन अनलाइन कैनल दिया है बट लाइन का नहीं दिया, तो लाइन के लिए एज्यूम करो this will be 0.01. okay this will be 0.01 cumex per million square meter of wetted area. okay this will be 0.01. तो सेम है ये फॉर्मूला जो था तुम्हारा यूनिट वही है यहाँ पे भी 0.01 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ वेटेड एरिया। ओके नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। देखो लेट हमको लेंथ ऑफ द कैनल नहीं बोला गया है, सो वी विल एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कि लेंथ ऑफ द कैनल है तुम्हारा L, मतलब इतना लंबा लेंथ हमको लाइनिंग करना है, वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कितना है L लेंथ है, L मीटर का है। ओके सो एरिया ऑफ सीपेज फॉर ऑनलाइन कैनल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सीपेज मतलब सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, वेटेड पेरीमीटर इनटू लेंथ कर रहे थे, राइट वेटेड पेरीमीटर इनटू लेंथ कर रहे थे हम लोग एरिया ऑफ सीपेज। ओके सो तो ये कितना होगा बोलो तो, वेटेड पेरीमीटर इनटू
एल हो जाएगा। नाउ वेटेड पेरीमीटर ऑफ द ऑनलाइन कैनल कितना था? वेटेड पेरीमीटर ऑफ द ऑनलाइन कैनल देखो कितना है, वेटेड पेरीमीटर ऑनलाइन कैनल इज 22.4, ठीक है। तो वहां पे वेटेड पेरीमीटर की जगह पर ये वाला बिठेगा। लेंथ इज अननोन, लेंथ हम लोगों ने एज्यूम किया है इतना ही है, सो दिस इज 22.4 एल। तो इतना मीटर स्क्वायर है तुम्हारा एरिया ऑफ सीपेज फॉर ऑनलाइन कैनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है कि सीपेज लॉस निकालना है। इतना एरिया से सीपेज लॉस होगा फॉर ऑनलाइन कैनल हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना है कि कितना लॉस हो रहा है, कितना क्यूमेक्स ऑफ वाटर जा रहा है, ठीक है। तो सीपेज लॉस इन ऑनलाइन कैनल इज दिस मच, 4 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ वेटेड एरिया, मतलब 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया कितना सीपेज हो रहा है, 4 क्यूमेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर मीटर से कितना होगा, तो ऑब्वियसली टोटल एरिया ऑफ सीपेज इतना है, तो इतने से कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करके बोलो। तो ये दिया गया है क्या, 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर से इतना हो रहा है, तो हमको इतना से निकालो। टोटल एरिया ऑफ सीपेज तो इतना है, तो कितना आएगा निकालो। तो सीपेज लॉस इन 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया है 4 क्यूमेक्स, ठीक है। अब निकालो सीपेज लॉस इन दिस मच एरिया, सीपेज लॉस थ्रू दिस मच एरिया कितना होगा, कितना क्यूमेक्स आएगा, प्लीज कैलकुलेट। 4 কত আসছে, করছো তোমরা? হ্যালো अमिता, तनुश्री, ये कैसे है, ये समझ में आ रहा? तो ओके, दिस टर्म इज व्हाट, एरिया, जो हम लोग अभी ड्राइंग करके दिखाया ना, वेटेड एरिया निकालो, सॉरी वेटेड पेरीमीटर निकालो इनटू लेंथ करने से तो हम लोग का वो एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया हो गया। तो दिस इज द सरफेस एरिया जहां से पानी सीप होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को दे ही गया कि 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया से 4 क्यूमेक्स वाटर सीप हो रहा है, तो इतना से कितना होगा, तो 1 क्यूमेक्स से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना होगा, ऑब्वियसली 4 डिवाइड 10 बाय 6, तो 22 से कितना हो जाएगा, इतना होगा, इतना क्यूमेक्स पानी लॉस होगा, मतलब पानी सीप हो जाएगा, इतना क्यूमेक्स अमाउंट ऑफ टोटल क्यूमेक्स कितना हो रहा है, इतना, ये सीपेज की वजह से लॉस होगा इन ऑनलाइन कैनल, ओके। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एनीवन? इसके बाद क्या करना है हमको, कोई आइडिया है? ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम से हमको मॉनिटरी करना है, पैसा में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, एनुअल रेवेन्यू। देखो एनुअल रेवेन्यू बोल दिया कितना है कि 1 क्यूमेक पानी अगर तुम वाटर सप्लाई करोगे तो 4 लाख का रेवेन्यू तुमको मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम इतना वाटर देते जो कि लॉस हो गया, ठीक है, अगर इतना वाटर तुम अगर देते तो कितना पैसा मिलता तुमको, कैलकुलेट करो तो 4 लाख से 4 लाख, एनुअल रेवेन्यू फॉर क्रॉप्स इज 4 लाख पर क्यूमेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 क्यूमेक्स ऑफ वाटर का रेवेन्यू है 4 लाख, तो इतना क्यूमेक्स ऑफ वाटर का रेवेन्यू कितना होगा वो निकालो। क्या कर देंगे, सिंपल इसके साथ दिस इंटू 4 हम कर देंगे 4 लाख, राइट, दिस इंटू 4 लाख। देखो ये क्या है, रुपीज पर क्यूमेक्स है इसका यूनिट, रुपीज पर क्यूमेक्स, मल्टीप्लाइंग विद द क्यूमेक्स वी विल गेट इन रुपीज, ठीक है। तो 1 क्यूमेक्स ऑफ वाटर गिव्स रेवेन्यू ऑफ दिस मच, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस मच क्यूमेक्स ऑफ वाटर would have given us, क्योंकि ये तो लॉस हो गया जो भी है, would have given us revenue of rupees, देखो दिस 4 lakhs को हम लोगों ने 10/5 कर दिया, ओके, दिस इनटू दिस कर दिया, करके देखो इतना आ रहा है 35.84, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है। यहाँ पे एक एल टर्म अननोन रहेगा, तो इतना क्यूमेक्स ऑफ वाटर हमको कितना पैसा देता था, 4 इंटू 10⁵ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10⁶ इंटू 22.4,
कितना आ रहा है? ये तो गलत आ गया मेरा। ओ यहाँ पे 4 होगा। কত আসছে বলো? 35.84 আসছে কি? यूनिटरी मेथड, एक क्यूमेक का इतना है अमाउंट, तो इतना क्यूमेक्स का कितना होगा? 35.84 आ रहा कि नहीं आ रहा सबका बोलो। तो देखो अगर इतना लॉस नहीं होता तो हमको इतना पैसा मिलता, इतना सीपेज लॉस नहीं होता तो इतना पैसा मिलता, राइट? ठीक है। अब ये है तुम्हारा अनलाइन का। सेम मेथड से अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन का निकालेंगे। ठीक है, तो लाइन का भी सेम मेथड है। तो सीपेज एरिया फॉर लाइन कैनल, वेटेड पेरीमीटर ऑफ द लाइन कैनल इनटू लेंथ। लेंथ तो हम लोगों ने सेम ही रखा है, दोनों में ऑब्वियसली उतना लेंथ ही हमको लाइन करना है, राइट? So weighted perimeter for 22, so 22 L meter square is the area of seepage. Seepage loss for your weighted area is 0.01. Okay, यहाँ पे 0.1 क्यों दे रहे हैं हम? 0.1 ही है। ओके 0.1 ही है, ठीक है। सो दिस इज 0.1 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब सेम मेथड से तुम्हारा रेवेन्यू निकालो, तो सेम रेवेन्यू कितना होगा? पहले कैलकुलेट द टोटल सीपेज लॉस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्यूमेक्स, फिर निकालो उसका रेवेन्यू। पहले यहां से निकालो, देखो 10 to the power 6 वेटेड एरिया से इतना क्यूमेक्स सीपेज लॉस हो रहा है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हो रहा है 10 to the 6 से। तो 22 L से कितना लॉस होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस होगा, कितना क्यूमेक्स ऑफ वाटर लॉस होगा, पहले वो निकालो। ठीक है, देन वी विल कन्वर्ट दैट इनटू रेवेन्यू, उसको आप मॉनिटरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो सीपेज लॉस इन 10⁻6 है ये वाला, दिस वी हैव एज्यूम्ड, ओके, ये वाला टर्म नहीं लिया था, वी हैव एज्यूम्ड। तो सीपेज लॉस इन 1 मीटर स्क्वायर विल बी 0.1 by 10⁻6, तो सीपेज लॉस बाय 22 L कितना होगा? सीपेज लॉस थ्रू 22 L एरिया, वेटेड एरिया विल बी 0.1 by 10⁻6 into 22 L क्यूमेक्स। ठीक है, अगेन ये तो रेवेन्यू तो सेम है, कांस्टेंट तो सेम है, ये कांस्टेंट है रेवेन्यू कि एक क्यूमेक वाटर से इतना रेवेन्यू मिलता था हमको। ठीक है, एक क्यूमेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर से इतना रेवेन्यू मिलता है, इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द रेवेन्यू दैट वी हैव कलेक्टेड अगर इतना लॉस होता तो। बोलो बोलो, कत আসছে बोलो तो। हेलो, আছো কি তোমরা? अरे रेस्पॉन्स तो करो। কে আছো? কৌশিক, কুন্তি बोलो, ইমন, পুল আপ করছো? হ্যালো, আরে শুনতে পাচ্ছো নাকি? আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু। হ্যাঁ ম্যাম। ও আচ্ছা, তো বল। হ্যাঁ ম্যাম কিন্তু বলছিস তনুশ্রী, ক্যালকুলেট কর এটা। दिस इज द एरिया जहां से तुम्हारा सीपेज होगा। ठीक है, तो इतना एरिया से सीपेज हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कितना वॉल्यूम उस एरिया से सीपेज हो रहा है, इस एरिया से समथिंग अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन सीपेज, राइट? अब देखना कि कितना वॉल्यूम सीपेज हो रहा है। तो बोला गया है 0.1 क्यूमेक सीपेज होगा अगर 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर एरिया से। ठीक है, तो 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना सीपेज हो रहा है? इतना सीपेज हो रहा है। तो 22 L मीटर स्क्वायर से कितना सीपेज होगा? यूनिटरी मेथड 0.1 by 10⁻6 into 22 into L, तो ये वाला हो रहा है। ठीक है, मतलब इतना वॉल्यूम या इतना क्यूमेक्स ऑफ वाटर हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू सीपेज। अब बोला है कि
एक क्यूमेक्स ऑफ वाटर से, या 1 क्यूमेक मतलब है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अमाउंट ऑफ वाटर या डिस्चार्ज ऑफ वाटर से हम लोग को रेवेन्यू मिल रहा है इतना, ठीक है। तो इतना क्यूमेक से कितना मिलता है हमको रेवेन्यू, कैलकुलेट करो। 4 lakhs is 4 into 10 to the power 5 rupees, okay. So 1 cumex of water gives revenue of this much amount. तो इतना क्यूमेक्स ऑफ वाटर से कितना रेवेन्यू मिलता है हम लोगों को, दिस इंटू दिस कर दो, राइट। तो दिस इंटू दिस करके देखो, दिस टर्म इंटू दिस टर्म करके हम लोग का आ रहा है 0.88 L, ठीक है। पिछले वाले से कितना आ रहा था तुम्हारा, revenue loss due to seepage in unlined is this much, revenue loss due to seepage in lined is this much। कौन सा कम लग रहा है तुमको पैसा, अगर लेंथ कांस्टेंट है कहाँ पे तुम्हारा लॉस कम हो रहा है, पैसा का लॉस कम हो रहा है, लाइन में कि अनलाइंड में? अगर एल का वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ भी अगर दे देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, तो कहाँ पे तुमको लग रहा है कि लॉस ज्यादा हो रहा है, अनलाइन में ना लाइन में? पैसा का लॉस कहाँ पे हो रहा है तुमको, ड्यू टू सीपेज। सीपेज हो रहा मतलब क्या है, पानी निकल जा रहा है, निकल जाने से जितना पानी ग्राउंड में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया, ठीक है। बाकी तो सब थ्रू जितना मतलब थ्रू आउट द वे वो खत्म होता होता जा रहा है, सीपेज की वजह से लॉस होता होता जा रहा है। तो उतना अमाउंट इरिगेशन लाइन में पहुंच ही नहीं पाया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा खर्चा मतलब पैसा तो कम ही मिलेगा ना, रेवेन्यू कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे तो कम क्रॉप्स यहाँ पे यील्ड होगा तो कम पैसा आएगा हम लोग को, राइट। तो अनलाइन में देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सीपेज की वजह से इतना पैसा लॉस जा रहा है हम लोग को, वेयर एज लाइन में वही क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है 0.08 में। सो व्हाट इज द बेनिफिट देन, या सेविंग्स इन सीपेज लॉस कितना होगा? So annual savings in seepage loss will be how much? This minus this, ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा। पहले इतना लॉस हो रहा था, अभी इतना लॉस हो रहा है, तो कितना सेविंग हो रहा है, दिस माइनस दिस। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द, यहाँ पे एल होगा, ओके, यहाँ पे एल नहीं दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 35.75 L is the annual savings in the seepage. Now एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अनलाइन कैनल ये दे दिया था, ठीक है। अनलाइन कैनल अगर रहता तो इतना तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब 10 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द अनलाइन कैनल या सरफेस एरिया ऑफ द अनलाइन कैनल हैज टू बी मेंटेन एट ₹1.2, ठीक है। और तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 10 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया इज 1.2। अनलाइन कैनल का वेटेड एरिया कितना था, अनलाइन कैनल का वेटेड एरिया कितना था, अनलाइन कैनल का पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर था 22 आई थिंक तुम्हारा कितना था, 22.4 था, ठीक है, 22.4 था। सो 22.4 इंटू लेंथ विल गिव यू द वेटेड एरिया। सो इसका अनलाइन कैनल का वेटेड एरिया है 22.4 L, ठीक है। तो उतना एरिया को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है वो पहले कैलकुलेट करो। तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा लग रहा था, तो 22.4 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा लग रहा है, मतलब 1.2 डिवाइडेड बाय 10 इनटू दिस मच, ओके। ये है तुम्हारा अनलाइन कैनल का मेंटेनेंस। और बोला गया है वहां पे क्या, सेविंग्स इन दी मेंटेनेंस कॉस्ट इज 40%, मतलब अनलाइन में इतना मेंटेनेंस खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उसका 40% विल बी योर सेविंग। अगर तुम उसको लाइन कर दोगे, अनलाइन को लाइन अगर कर दोगे, तब क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट में कम, मतलब देयर विल बी रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। तो कितना रिडक्शन हो रहा है, 40%, मतलब 100 रुपीज तुम्हारा पहले खर्चा हो रहा था, अभी बोला गया है कि रिडक्शन तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट हो जा रहा है 40%, मतलब कितना तुम्हारा सेविंग्स हो रहा है, 40% of that maintenance cost, okay. So the savings in maintenance cost of line canal कितना है, 40% of maintenance cost of the unline canal। जितना भी अनलाइन कैनल में जितना खर्चा हो रहा है मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, उसका 40% will be savings अगर हम लाइन कैनल कर देंगे, अगर उस अनलाइन को हम लोग लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। तो ड्यू टू लाइनिंग
दिस इज द सेविंग इन मेंटेनेंस कॉस्ट 40% ऑफ दिस मच. ओके, तो ये देखो 40% ऑफ दिस मच अमाउंट इज गिविंग अस 1.075 L. ओके, अब ये देखो, ये है तुम्हारा सेविंग्स इन सीपेज इतना है, सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट इतना है. सो कैन वी कैलकुलेट द बेनिफिट? दिस विल बी L. ओके, यहाँ पे L आएगा, कैपिटल L आएगा. तो व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हाट इज द तुम्हारा वो कॉस्ट बोलो तो टोटल बेनिफिट कितना होगा? ये है तुम्हारा सीपेज में सेविंग्स. ओके, एंड ये है तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट में सेविंग्स. सेविंग्स ही तो तुम्हारा बेनिफिट है, राइट? So this is the annual savings in CPAS, this is the annual savings in maintenance cost. So total annual saving कितना है? This plus this. Okay, so this is the annual savings and this savings is nothing but your benefit. Okay, so total benefit is the total annual savings which is this much amount. अब तुम्हारा बेनिफिट हो गया, अब हमको क्या निकालना है? खर्चा निकालना है, राइट? सॉरी, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एनपीडब्ल्यू निकालना है. तो एनपीडब्ल्यू का फॉर्मूला ये था, दिस इज ए. ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो. आई का वैल्यू 6% तो 0.06, एन का वैल्यू 40 ईयर्स है तो यहाँ पे 40 पर बिठेगा. ओके, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट एंड वी आर गेटिंग, सी ए का वैल्यू है 36.827 L, आई है 6% तो 0.06, एन इज 40 ईयर्स, 40 यहाँ पे पुट कर दिया करके वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट इज द बेनिफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट. ओके, अब हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो कॉस्ट के लिए हमको टोटल पेरीमीटर चाहिए, नॉट द वेटेड पेरीमीटर. ओके, टोटल पेरीमीटर निकालो. तो वेटेड पेरीमीटर ऑफ द लाइन कैनल दे ही दिया था कितना, कैपिटल पी था 22 मीटर. ओके, सो ऑब्वियसली टोटल पेरीमीटर थोड़ा ज्यादा होगा वेटेड पेरीमीटर से. वेटेड पेरीमीटर 5 नीचे जितना पेरीमीटर है, लेकिन लाइनिंग तो हमको ऊपर तक देना है, तो टोटल पेरीमीटर विल बी ग्रेटर देन दिस वन. वेटेड पेरीमीटर तो कितना है? 15% ज्यादा होगा. मतलब अगर ये वेटेड पेरीमीटर 22 है तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा? 15% ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो हम लोग 15% मोर देन दिस वन. ओके, तो क्या हो जाएगा इसको, मतलब 115 हम लोग कर दिए, 115% कर दिया इसका. ठीक है, तो 115% ऑफ 22, मतलब 15% ज्यादा है ना, इसीलिए 100 प्लस 15, तो 115% इज 1.15. ओके, तो इतना आ रहा है. तो दिस इंटू दिस विल गिव यू दिस मच मीटर. टोटल पेरीमीटर हमको निकल आया. अब थ्रूआउट द टोटल पेरीमीटर ही हमको क्या करना है? लाइनिंग करना है. टोटल पेरीमीटर में हमको लाइनिंग करना है. ठीक है, तो उसके लिए अब टोटल पेरीमीटर पता है, अब टोटल एरिया निकालो. टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इंटू लेंथ, ये पहले से ही सॉल्व करते आ रहे हैं. पेरीमीटर इंटू लेंथ विल गिव अस सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लाइनिंग है टोटल पेरीमीटर इंटू एल. तो दिस इज द टोटल एरिया. ठीक है, अब टोटल एरिया तुमको पता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पता है. ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनिंग है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 20 रुपीज खर्चा पड़ रहा है. तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस इंटू दिस. ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना खर्चा है, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, लाइनिंग के लिए कितना होगा? दिस इंटू दिस. देखो आ रहा है 506 L. ठीक है, दिस इज योर TLC. ठीक है, टोटल लाइनिंग कॉस्ट इज 506 एंड नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट जो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था दैट इज 54.1 L. ठीक है, अब टेल मी वेदर दिस इज इकोनॉमिक और नॉट. कॉस्ट इतना है, बेनिफिट इतना है. सो व्हाट इज तुम्हारा जो भी स्कीम है, मतलब ये जो लाइनिंग कर रहे हैं, इज इट बेनिफिशियल? बेनिफिट है कि नहीं है? क्यों रिप्लाई दिच्छो ना जानो, बुझते ही पारছি না. সিমন বা তুপুলক बोलो. Your cost is coming out to be lesser than the present, lesser than the benefit. So cost खर्चा ज्यादा है, बेनिफिट खर्चा कम है, बेनिफिट ज्यादा है. So ऑब्वियसली हम लोग के लिए ये स्कीम अच्छा है, राइट? कि हम लोग लाइनिंग करने से हम लोग का बेनिफिट ज्यादा आ रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से. सो दिस इज इकोनॉमिक. ओके, सो द स्कीम इज इकोनॉमिक. तो ये चेक करने के लिए बोला था वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉट, एंड दिस आर द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो. ओके, कुछ नहीं है, बेसिक्स है.
इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट कितना है, उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है कि वेटेड एरिया निकालो, फिर रेवेन्यू निकालो, ओके। फिर उसके बाद एनुअल सेविंग्स निकालो, देन फाइनली क्या बोलते हैं, सेविंग्स इन सीपेज, सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर ऐड कर दो, टोटल सेविंग्स आ जाएगा। फिर टोटल सेविंग्स इज नथिंग बट द बेनिफिट, बेनिफिट को एनपीडब्ल्यू हम लोग निकालना है, नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बेनिफिट कैलकुलेट करना है, एंड कंपेयर दिस विद द कॉस्ट, कॉस्ट के लिए लेकिन टोटल पेरीमीटर चाहिए, टोटल पेरीमीटर विल बी 15 टाइम्स मोर देन दी योर वेटेड पेरीमीटर, ओके। और ये लाइन कैनल का वेटेड ये है, तो लाइन कैनल का टोटल विल बी 15% मोर देन दी 22 विच इज 1.15 into 22, ठीक है। तो उस हिसाब से टोटल एरिया निकालो, कॉस्ट निकल आएगा, देन वी कैन कंपेयर। ओके देन nobody is responding, I don't know why। আছো কি নেই বুঝতে পারছি না আমি। আছি ম্যাম। তো কিছু বলছো না কেন? যা লেন্দি অঙ্ক ম্যাম মনে হলো ইতিহাস পড়লাম। লেন্দি তো আছে, কিন্তু যখন আমি বলছি টুকটাক করে তখন তো রেসপন্স করতে পারো। আমি বুঝবো কি করে তোমরা বুঝেছো কিনা, এর জন্য এটা 15 মার্কস, ফর দিস রিজন অনলি ইট ইজ গিভেন ইন ইয়োর গ্রুপ সি, ওকে। ঠিক আছে তাহলে থাক আজকে এটুকু। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হুম হুম হুম। আর ম্যাম বলছিলাম আগে কয়েকটা অঙ্ক পারিনি ম্যাম ওই অ্যাসাইনমেন্ট।